Hello everyone, welcome back to Analyst Adda. So in the previous videos, we understood how transactional annotation works in Spring Boot, but today we are stepping into a very critical database concept, that is isolation. So when multiple transactions run at the same time, how do we prevent data corruption? How do we control what one transaction can see from others? Right, so today we are going to deeply understand isolation levels completely from theory perspective. So today's video is for theory, but the next video will be practical. Okay, so in the next video we will demonstrate it practically using concurrent threads. Okay, so let's start from basic. So first, before going to deep dive, we need to understand first what is isolation, right? So isolation. Okay, so isolation, what is isolation? What do you mean by isolation? Isolation is one of the ACID properties of the database transaction. Okay, suppose the ACID is basically ACID, this is the ACID. Okay, so here the a sorry. Okay, a a is atomicity. Okay, C, right? C is consistency. I is isolation, and D is durability. Right. So in the acid property, you can see here A is atomicity, C is consistency, I is isolation, and D is durability. Then say, then this is the acid properties we used in the database. So here isolation defines how independent one transaction is from another running transaction. This is the isolation here. So we use isolation in the asset property. Okay, for example, if transaction A is running, okay, so what can transaction B see? So that visibility rule is isolation. Okay, okay, okay. So I'm highlighting this one. Sorry. So first, I hope you understood what is isolation here. Okay, then why do we need isolation? So in a real systems, multiple user interact with the database at the same time. A lot of users, right? Thousands, lakhs users. Suppose let me explain with a simple layman language. Suppose user A checks account balance. Okay, then user V transfer money. Then user C update the profile. There are the three users. We can say there are the three threads. Okay. All of this happen concurrently. So without isolation, a user may see partial update. User data may become inconsistent, and might be the report may show wrong number. Okay, so isolation ensures correctness under concurrency. Okay, understood? Now, problems that isolation solves. Okay, what problems isolation can solve? So there are
three major concurrencies problem isolation can solve these issues. What is the problems? So now number one is the I'm discussing about the problems. Okay. So first is the dirty read. Okay, this is the main important things. Most of the interviewer asks if you have experience almost 5+ years, then interview can ask these types of questions. Okay, dirty read. Let me create one table for you, something like. Okay, so first I will explain the dirty read, non-repeatable read, and the third is the phantom read. Okay, so one by one I will explain. First is the dirty read, right? The second is non-repeatable read, right? The third is phantom read. Okay, so these are the problems we face in the concurrencies. Okay, and these problems solve by using the isolation. Okay, these problem have the solution of isolation. Okay, so first one by one I will explain. Okay, so what is dirty read? Dirty read is basically reading uncommitted data from another transactions. For example, I will, what is this? Reading. What it is reading? Dirty read means what is reading? It is reading uncommitted data which is not committed. Okay, uncommitted data from another transaction. Okay, another transaction. Let me explain you. Okay, suppose transaction A. We have the transaction A. Okay, transaction A update balance something like the 500. Okay, it is updating. It is updating. Okay, it updates the balance, but it is not committed. It is updating A updating the balance 500 but not committed. Okay, hasn't committed. We can say committed. Then now transaction B come into the picture. Transaction B came and read balance. Okay, then it try to read balance and it sees the balance is 500. It sees balance is 500. Okay, understood? Now after some times transaction A rollback again. Okay, A rollback again and it doesn't have sufficient balance. Okay, now after some time it A A rollback. Okay, A rollback, then it means there is no balance. Okay, then again transaction B try to saw data. What is the data that never officially existed? Okay, understood what is the problem of dirty read? Dirty read. Okay, after some time A rollback, then what would happen? Then if we try to saw data that is never officially existed. ओके, जब भी मैं एक बार हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ डर्टी रीड का मेन क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है डर्टी रीड का, मैं प्रॉब्लम्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डर्टी रीड का क्या प्रॉब्लम है? सपोज एक ट्रांजेक्शन ए हुआ, एक थ्रेड ए जिसने क्या किया, कुछ अपडेट किया
फॉर एग्जाम्पल अगर हम अकाउंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बैंक्स में जाते हैं तो हमारे पास एक अकाउंट होता है, राइट। अकाउंट में यूजर ने क्या किया, अकाउंट में 500 रुपीज जमा किए, बट वो जमा नहीं हो पाए किसी रीजन से, राइट। बट वो शो होंगे कि जमा हो गए हैं, राइट। एंड देन दूसरा बी यूजर्स आया, बी थ्रेड आया, उसने चेक किया कि बैलेंस कितना है, राइट। जब वो बैलेंस कितना है ये चेक करने जाएगा, रीड करेगा बैलेंस को, तो उसको क्या दिखेंगे, 500 है अमाउंट में, बट वो कमिटेड नहीं हुए हैं, इट मीन्स वो जमा ही नहीं हुए हैं। अगर मैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में जाती हूँ, नॉट दी कोडिंग लैंग्वेज, वो जमा ही नहीं हुए किसी रीजन से। मान लो किसी 500 का चेक था, ओके, अब वो चेक दिख तो रहा था, लगा हुआ था, और बी ने रीड किया तो उसको कितना 500 बैलेंस दिखा, बट आफ्टर सम टाइम वो चेक, उसको चेक में कोई इश्यू आ गया, वो रोल बैक हो गया, राइट। देन क्या हो गया, बी जब ट्राई करेगा दोबारा से उसको चेक करने का, तो क्या होगा, उसको डेटा दिखेगा नहीं, क्योंकि डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ इश्यू आया था वहां पर जो बी को नहीं पता। तो उसमें क्या होगा, डर्टी रीड, मतलब जो बी ने जो रीड किया था वो डर्टी रीड था, ऐसा कोई बैलेंस था ही नहीं उसके अकॉर्डिंग। समझ में आया डर्टी रीड का क्या मतलब है। नेक्स्ट इज नॉन रिपीटेबल रीड। नॉन रिपीटेबल रीड मीन्स, सपोज if someone is reading same raw data and getting different values, okay, someone reading raw data twice, okay, twice, दो बार उसने देख लिया, and getting different results, different results और different values, जो भी आपको समझ आए उसके अकॉर्डिंगली, बट आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि क्या है, क्लियर होना चाहिए, राइट। तो रीडिंग, सपोज वी आर रीडिंग द रॉ डेटा ट्वाइस, टू टाइम्स हमने रीड किया डेटा को, और दोनों बार क्या आया, डिफरेंट रिजल्ट्स आया, गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट। सपोज फॉर एग्जांपल, आई एम एक्सप्लेनिंग विद द एग्जांपल, सपोज वी हैव transaction A that reads balance, we have transaction A, right, first read balance, then output is 1000, okay. Then transaction B, transaction B is updating some amount, okay, updates some balance, that is 5000, okay. Then transaction A again try to reads, okay, A again reads, then what would be happen here, फर्स्ट टाइम जब ए ने रीड किया तो उसके 1000 था वहां पे अमाउंट, जब दोबारा बी ने आके उसको अपडेट कर दिया, जब वो दोबारा रीड करने गया तो उसको क्या हो गया, डिफरेंसेस आए रिजल्ट्स में, तो दोबारा रीड किया तो अब क्या आया है 5000, सॉरी 6000, 1000 पहले था, 6000, 5000 ऐड हो गया तो कितना हो गया 6000। तो ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, डिफरेंशिएट हुआ, सेम ट्रांजेक्शन था और सेम ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, डिफरेंट रिजल्ट, इट मीन्स सेम ट्रांजेक्शन बट डिफरेंट रिजल्ट्स, ओके। अभी आपको समझ आया, दिस इज द नॉन रिपीटेबल रीड, क्योंकि हम एक ही उसको क्या कर रहे हैं, दो बार रीड कर रहे हैं, तो दिस इज नॉन रिपीटेबल रीड, ओके। तो फर्स्ट टाइम जब रीड किया तब डिफरेंट रिजल्ट था, सेकंड टाइम जब रीड किया तो डिफरेंट रिजल्ट था, सो सेम ट्रांजेक्शन बट डिफरेंट रिजल्ट, दैट इज द नॉन रिपीटेबल रीड, ओके। आई होप आपको समझ आया हो। द थर्ड इज फैंटम रीड, okay. Phantom read, what says the phantom read, phantom read when new row appears during the same transaction, okay. When, I will explain you, okay, when new row
appear during the same transaction. Okay, what does it means? Okay, when new row appears during during the same transaction. Suppose for example, transaction A is querying some results, and uh, suppose it's querying the results, select a star from the order where amount is greater than or less than, then it returns the 5 rows at that time. Okay, then transaction B insert a new row. Okay, if transaction A, I will transaction A querying some query some query, for example, select something query, I can say select a star. This is a very simple query, star from orders where amount greater than 100. Then it is returning only 5 row. It returns only 5 row. Okay, but after sometimes transaction we insert new row. Okay, if transaction returns sorry, transaction insert new row. Okay, with amount greater than 100, so we can say the amount of 150. Okay, with the amount of 150 that will be included. So if transaction A runs the same query, then what would be happen? At this time it is returning only the 5 row, then again it run the same query, it returns the 6 row. Okay, this is the problem of the phantom read. So the new row is a phantom. Okay, the new row is a phantom. Okay, I hope you understood the problems, but what is the solution? So isolation have the solution of these problems. Okay, uh, I hope you understood the problem. Sometimes interviews can ask normals the problems, what is the problems of the which solves by the isolation, or we can solve the some of the problems by using the isolation. So what is the problem? So okay, these are the problems. I hope you understood these problems. मैंने आपको अच्छे से हिंदी में भी समझाया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसका क्या मतलब है, डर्टी रीड्स कब होता है, नॉन रिपीटेबल रीड्स कब होता है, ना फैंटम रीड्स कब होता है. अब हम इनका प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशंस क्या है. ओके, तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. सॉल्यूशन के लिए नॉट श्योर. ओके, मुझे ओके, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के. ओके, तो सॉल्यूशंस में क्या आएगा? सबसे पहले सॉल्यूशंस के लिए है कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं हमारे पास. ओके, आइसोलेशंस के क्या सॉल्यूशन, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी आइसोलेशंस के लेवल्स क्या है. व्हाट इज द आइसोलेशन लेवल्स. ओके, आइसोलेशन लेवल्स. ओके, सो आइसोलेशन लेवल क्या है? रीड अनकमिटेड, आई विल रीड uncommitted, read committed
repeatable read, right, and also serializable, okay, serializable, okay. सो दीज फोर लेवल्स हैं जो आइसोलेशन लेवल हैं, ओके। इनको वन बाय वन हम समझेंगे कि क्या है, ये लेवल्स क्या हैं, ओके। और इन्हीं के थ्रू हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रीड अनकमिटेड क्या है। रीड अनकमिटेड बेसिकली द लोएस्ट आइसोलेशन लेवल। रीड अनकमिटेड इज द लोएस्ट लेवल, ओके। इट अलाउ द, okay, first of all I will lowest isolation level, this is the lowest one, okay. Read uncommitted is the lowest level, okay. It allow the dirty reads, we have already discussed the problems, dirty reads, non-repeatable reads, okay. I will dirty reads. Second is the non-repeatable reads, okay. Then third is the phantom read, phantom reads, okay. तो ऑब्वियसली हमने जो प्रॉब्लम्स बताई थी वो सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। मतलब रीड अनकमिटेड जो लोएस्ट लेवल आइसोलेशन है उसके अंदर क्या क्या अलाउ करता है, वो डर्टी रीड को भी अलाउ कर देता है, नॉन रिपीटेबल रीड को भी अलाउ कर देता है, फैंटम रीड को भी अलाउ कर देता है। तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। सारी जो प्रॉब्लम्स हम बता रहे थे वो सारी प्रॉब्लम्स इसी के पास है। मतलब अगर रीड अनकमिटेड करेंगे तो जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कॉन्करेंसी, वो सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं इसमें, राइट। सारी प्रॉब्लम फेस करेंगे तो इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बट वेरी फास्ट है। इट इज़ वेरी फास्ट बिकॉज कुछ भी चेक नहीं करना ना, उसको चेक ही नहीं करना, बस केवल क्या करना है, डेटा को रीड करना है, अपडेट करना है, जो भी होना है वो कम जल्दी जल्दी करेगा, बट कोई भी चीज़ को चेक नहीं करेगा। दिस इज़ वेरी फास्ट बट इट इज़ अनसेफ, ऑलमोस्ट never used in the real world system basically, okay. It is you can say the very fast, it is very fast but very unsafe, okay. I hope you understood the read uncommitted level, okay. The second is the read committed. The second level of isolation is the read committed. What is read committed? Read committed, it prevents the dirty reads. जो dirty reads है उसको prevent करेगा, ओके। क्या प्रिवेंट करेगा? इसमें तो कुछ प्रिवेंट हो नहीं रहा, सबको अलाउ कर रहा है, ओके। इट अलाउ, इट अलाउस, ओके। इट अलाउस ये सारी चीज़ों को अलाउ करता है, बट अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो क्या करेगा? इट प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट कर रहा है? प्रिवेंट करेगा किसको? डर्टी रीड को। डर्टी रीड को क्या करेगा? वो प्रिवेंट करेगा। डर्टी रीड को प्रिवेंट करेगा बट अलाउ करेगा किसको? इन दोनों को। इसको केवल प्रिवेंट कर रहा है डर्टी रीड्स को, बट बाकी दोनों को तो क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है, ओके। इट प्रिवेंट डर्टी रीड बट it allow नॉन रिपीटेबल रीड्स एंड द फैंटम रीड्स, ओके। इन दोनों को क्या कर रहा है? वो अलाउ कर रहा है। तो मीनिंग वी कैन से, कह सकते हैं कि जब हम वी कैन ओनली रीड कमिटेड डेटा, ओके। और वी कैन से मीन्स जो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनाते हैं तो कॉमनली यूज होता है, क्योंकि ये डर्टी रीड्स को क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। बाकी दो है नॉन रिपीटेबल रीड्स और फैंटम रीड्स, हो उसको अलाउ कर रहा है, कोई इशू नहीं है। बट इट बेस्ड ऑन द, ये बैलेंस बना के रख रहा है बिटवीन परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी को, ओके। इसके अंदर परफॉर्मेंस भी है बट सेफ्टी भी है। तो जो पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल है उसका डिफॉल्ट आइसोलेशन क्या है? रीड कमिटेड, ओके। रीड कमिटेड क्या है? डिफॉल्ट आइसोलेशन लेवल है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ओके।
मोस्ट कॉमनली यूज होता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन में. दिस इज मोस्ट कॉमनली used in enterprise applications. ओके. बिकॉज क्यों एप्लीकेशंस क्यों यूज होता है? क्योंकि बैलेंस बना के रख रहा है. बैलेंस बिटवीन सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस. और इस जो डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल जो डिफ़ॉल्ट आइसोलेशन यूज करता है वो रीड कमिटेड करता है. ओके. एंड इट इज द डिफ़ॉल्ट. वेयर आई एम राइटिंग. ओके, सॉरी. Which is a default isolation for PostgreSQL. ओके. तो PostgreSQL में जो यूज होता है वो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो रीड कमिटेड होता है. मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइज एप्लीकेशन है उसमें इसको यूज किया जाता है. ओके. रीड कमिटेड में. अब नेक्स्ट है रिपीटेबल रीड. ओके. तो हम बात करते हैं रिपीटेबल रीड की. रिपीटेबल रीड में क्या प्रिवेंट कर रहा है? दो चीज़ों को प्रिवेंट करेगा. डर्टी रीड्स को प्रिवेंट करेगा और नॉन रिपीटेबल रीड्स को क्या कर रहा है? वो प्रिवेंट करेगा. ओके. यहाँ पे लिख देते हैं. डर्टी रीड्स एंड नॉन रिपीटेबल रीड्स. ओके. ये दो को करेगा, दो को प्रिवेंट करेगा. ओके. बाकी अलाउ किसको करेगा? फिर फैंटम रीड को वो अलाउ कर देगा. इट अलाउ दी फैंटम रीड्स. ओके. तो हम कह सकते हैं कि जब भी आप रीड कर रहे हैं रो को एक ही टाइम पे वंस इन अ ट्रांजेक्शन, देन वी विल ऑलवेज सी द सेम रो वैल्यू इन दैट ट्रांजेक्शन. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके. एक ही रो दिखेगी आपको. जो दोबारा से ट्रांजेक्शन्स दिख रहा था आपको, एक न्यू रो ऐड होके दिख रही थी, वो इसमें नहीं दिखेगी. ये माई एसक्यूएल का डिफॉल्ट आइसोलेशन है. कौन? रिपीटेबल. जैसे पोस्ट क्यू एसक्यूएल का डिफॉल्ट आइसोलेशन रीड कमिटेड है, ये माई एसक्यूएल का है. माई एसक्यूएल डिफॉल्ट isolation. Okay. Repeatable read is the default isolation for MySQL and the PostgreSQL में जो डिफॉल्ट आइसोलेशन यूज होता है वो रीड कमिटेड होता है. ये क्या करता है? जो रिपीटेबल रीड है वो मतलब मोस्ट सिस्टम में ये भी यूज होता है क्योंकि ये गुड बैलेंस कर रहा है, क्योंकि दो चीज़ों को कवर कर रहा है. रीड कमिटेड में केवल एक चीज़ को प्रिवेंट कर रहा था, ये दो चीज़ों को प्रिवेंट कर रहा है. डर्टी रीड्स को भी प्रिवेंट कर रहा है और रिपीटेबल रिपीट नहीं होंगी चीज़ें. और डर्टी रीड्स तो बहुत ही समझ लो खतरनाक है. ओके. डर्टी रीड्स को भी क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है. बट ये अलाउ कर रहा है फैंटम रीड्स को ओनली. ओके. तो माइएसक्यूएल का डिफॉल्ट है. मोस्ट ऑफ द मतलब इसको बैलेंस सिस्टम जो रहते हैं, हमको बैलेंस करना है प्रॉपर सिस्टम को, तो हम इसको लेके जा सकते हैं. नेक्स्ट इज द सीरियलाइजेबल. सॉरी सॉरी सॉरी. ओके. सीरियलाइजेबल कह सकते हैं हम द हाईएस्ट आइसोलेशन लेवल है. जैसे मैंने बताया, दिस इज द लोएस्ट आइसोलेशन लेवल. ये मिड के आइसोलेशन लेवल है हमारे रीड कमिटेड और रिपीटेबल रीड. एंड द सीरियलाइजेबल क्या है? हाईएस्ट आइसोलेशन लेवल है. ओके. ये हाईएस्ट आइसोलेशन लेवल है क्योंकि ये प्रिवेंट क्या कर रहा है? ये तीनों को प्रिवेंट कर रहा है. ओके. ये जो तीनों को रीड कर रहा था, ये तीनों को प्रिवेंट कर रहा है. और जब अगर प्रिवेंट कर रहा है, जब तीनों चीज़ों को प्रिवेंट कर रहा है, तो आपको ये पता है कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, मतलब सबको प्रिवेंट कर रहा है. बट ट्रांजेक्शन जो होता है ना वो एग्जीक्यूटेड होता है वन बाय वन. जब जैसे ये फास्ट है तो ये जब वन बाय वन करेगा तो ये स्लो भी हो जाएगा उतना, राइट. तो
स्लो होगा बट मोस्ट स्ट्रिक्ट होगा, लोवेस्ट कॉन्करेंसी होगी और हाईएस्ट सेफ्टी होगी। ओके, मैं लिख देती हूँ आपको, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे बिहेव करेगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये वन बाय वन इट इट एग्जीक्यूटेड वन वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा। ओके, नंबर फर्स्ट थिंग क्या होगा, मोस्ट स्ट्रिक्ट है क्योंकि सबको क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, राइट। मोस्ट स्ट्रिक्ट, राइट। मोस्ट लॉकिंग सिस्टम है इसके अंदर, लॉक कर रहा है चीज़ों को, राइट। लोएस्ट कॉन्करेंसी है, कॉन्करेंसी तो ना के बराबर ही कहेंगे हम इसको, लोएस्ट। और हाईएस्ट सेफ्टी है। ओके, तो अब इसको यूज कहाँ किया जाए, यूज होता है ये बैंकिंग सिस्टम में। ओके, यूज इन बैंकिंग सिस्टम में जो मेन जो बीच के मैंने बताया है वो हम मोस्टली एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी यूज कर लेते हैं, इसको तो हम यूज ही नहीं करते हैं। हम लोकल पर्पज से अगर हम सीख रहे हैं तब हम इसको यूज कर सकते हैं, बट अगर हम एंटरप्राइज लेवल की बात करें तो रीड अनकमिटेड यूज नहीं होता है। ओके, बट रीड कमिटेड रिपीटेबल रीड्स मोस्टली यूज होता है। बट हाँ, सीरियलाइजेबल हर बार यूज नहीं होता है, कब होता है, बैंकिंग सिस्टम्स में यूज होता है मोस्टली। तो बैंकिंग सिस्टम में इसलिए यूज होता है क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है चीज़ें। तो स्ट्रिक्ट की वजह से हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे उसको यूज करते हैं कि हमारा लोएस्ट कॉन्करेंसी हो, सेफ्टी हाई हो, ओके, मोस्ट स्ट्रिक्ट हो, मोस्ट लॉकिंग हो। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, बैंकिंग सिस्टम में हम सीरियलाइजेबल यूज करते हैं, रीड कमिटेड रिपीटेबल रीड मोस्ट एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज जाता है, रीड अनकमिटेड हम यूज नहीं करते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चंस क्या आएगा, विच आइसोलेशन लेवल इज डिफॉल्ट। ओके, तो जो माई एसक्यूएल है उसका डिफॉल्ट आइसोलेशन क्या है, रिपीटेबल रीड, राइट। पोस्ट ग्री एसक्यूएल है उसका डिफॉल्ट है रीड कमिटेड। ओके, और अगर ओरेकल का बात करें तो ओरेकल भी रीड कमिटेड ही यूज करता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और ओरेकल तो आपको क्लियर हो जाएगा। पोस्ट ग्रे एसक्यूएल और ओरेकल रीड कमिटेड यूज करता है, माई एसक्यूएल करता है वो रिपीटेबल रीड यूज करता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब स्प्रिंग कौन सा यूज करता है, राइट। अगर हमने कोई स्प्रिंग में कोई आइसोलेशन लेवल हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई आइसोलेशन इन स्प्रिंग देन स्प्रिंग यूजेस डेटाबेस डिफॉल्ट। अगर हमने कोई भी आइसोलेशन नहीं किया, जो भी हम डेटाबेस यूज करेंगे उसका डिफॉल्ट आइसोलेशन होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर हम ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो ओरेकल का रीड कमिटेड आएगा, अगर हम माइस्क्वेल कर रहे हैं तो रिपीटेबल रीड आएगा। तो आइसोलेशन को हमें मेनली हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली जो डेटा बेस हम यूज करते हैं उसके बिहाफ पर हमको क्या होता है, स्प्रिंग स्पेसिफाई कर लेता है। बट कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हमको स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे हमको चेंज भी करने पड़ते हैं आइसोलेशन लेवल। उसके लिए मैं आपको समझा रही थी, इसलिए कि क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, ओके, और ये क्या क्या लेवल हैं, राइट। आपको प्रॉब्लम्स बताया, आइसोलेशंस बताया कि लेवल उसको क्या सॉल्यूशन है आइसोलेशन में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, इंटरव्यू पूछ सकता है कि शुड बी एक्सप्लिसिटली डिफाइन आइसोलेशन, ये हम आइसोलेशन है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बोले कि इन मोस्ट एप्लीकेशंस में हमको एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना होता है, ठीक है, हमें ऑटोमेटिकली जो डेटाबेस यूज करते हैं उसके बिहाफ पे स्प्रिंग एनालाइज करती है और स्पेसिफाइज करती है और वो डेटाबेस को ले लेती है, मतलब वो भी आइसोलेशन को यूज करती है। ओके, तो जो भी डिफॉल्ट आइसोलेशन होता है वो इनफ होता है, वैसे यहाँ तक माना जाए। ओके, बट कुछ केसेस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, बिजनेस का स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ओके, कंसिस्टेंसी है, तो उसके बिहेवियर के जो उसको बिहेवियर चाहिए, उसके ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, उसके परफॉर्मेंस को लेके उसकी सिक्योरिटी को लेके, अगर उसका कोई क्रिटिकल फीचर्स है उसको लेके, या फाइनेंशियल ऑपरेशन है, जैसे मैंने बताया बैंकिंग में मोस्टली सीरियलाइजेबल आइसोलेशन यूज होता है।
उसके बिहाफ पर हम उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। अब इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा आइसोलेशन लेवल बेस्ट है। अगर आप बोलेंगे तो कहेंगे कि अरे लोएस्ट है तो वो बेकार है, सीरियलाइजेबल है तो वो अच्छा है। तो बेस्ट आइसोलेशन लेवल, मोस्ट ऑफ द डेवलपर कहते हैं कि सीरियलाइजेबल इज अ बेस्ट आइसोलेशन लेवल। नहीं, गलत है ये। सीरियलाइजेबल इज नॉट अ बेस्ट आइसोलेशन लेवल, सारे अच्छे हैं। इट्स बेस्ड ऑन दी, हमें क्या है, कोई यूनिवर्सल नहीं है बेस्ट। ओके, सीरियलाइजेबल बेस्ट है, बट वो कॉस्टिंग भी तो हाई होगा, उसका हाईएस्ट सेफ्टी है तो हाईएस्ट कॉस्टिंग भी होगा, राइट। तो सेफ्टी और परफॉर्मेंस के बेसिस पे जिसका रिक्वायरमेंट है हमारी एप्लीकेशन को, उसके बेसिस पे वो बेस्ट है उसके लिए। जब हमें यहाँ जरूरत ही नहीं है सीरियलाइजेबल की, हम उसको ले रहे हैं सीरियलाइजेबल को, तो वो बेस्ट नहीं कहलाएगा ना। तो जिसका जितना रिक्वायरमेंट है उस एप्लीकेशन के लिए वो हम यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट में हमारा काम चल रहा है तो हम डिफॉल्ट में चलाएंगे, राइट। मोस्टली बैंकिंग एप्लीकेशन में सीरियलाइजेबल का काम होता है, जैसे मैंने बताया। अगर अब मैं बात करूँ कि एनालिटिक्स के लिए, तो एनालिटिक्स के लिए रीड कमिटेड जो है सेकंड नंबर का, ओके, रीड कमिटेड से काम चल जाएगा एनालिटिक्स, क्योंकि वो रीड कर रहा है, एनालिटिक्स को हमें शो करना है, राइट। बट अगर वहीं बात करें हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन की, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में हमको रिपीटेबल रीड का रिक्वायरमेंट होगा। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम सेट करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे किस आइसोलेशन लेवल का रिक्वायरमेंट है और कौन सा आइसोलेशन लेवल बेस्ट है उस पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे एज अ नॉर्मल एग्जाम्पल मानती हूँ कि मुझे खाने का मन है खीर, बट आप दे रहे हैं लड्डू, तो लड्डू तो खाना ही नहीं था, क्या खाना था, खीर खाना था, राइट। बट अगर माना जाए कि खीर से ज्यादा लड्डू कॉस्टली है, बट लड्डू का रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी किसका रिक्वायरमेंट है, अभी खीर का रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम आइडेंटिफाई करेंगे किस आइसोलेशन का रिक्वायरमेंट है लेवल को, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सेट करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, नो वन इज द बेस्ट, नो वन इज द, कह सकते हैं कोई भी अच्छा नहीं है कोई भी खराब नहीं है, सारे बेस्ट हैं। ओके, बट इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट इंटरव्यू क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट केयर अबाउट द आइसोलेशन। अगर हमको हमको पता ही नहीं है, हम केयर ही नहीं करते, कुछ भी आइसोलेशन कुछ भी लगा दो, राइट। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमें आइसोलेशन के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आइसोलेशन वीक है, तो जो रिपोर्ट, जो हम आउटपुट रिप्रेजेंट करेंगे, जो रिपोर्ट हम शो करेंगे फ्रंट एंड में, वो हमारा क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। माइट बी द रिपोर्ट में सॉन्ग द रॉन्ग डेटा, और बैलेंस कैलकुलेशन इनकरेक्ट हो सकता है। अगर इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो वो ओवरसेल भी हो सकता है। अगर ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं और वहाँ पर रिपीटेबल रीड का रिक्वायरमेंट होता है, हम रीड कमिटेड लगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ओवरसेल दिखाएगा, कॉन्करेंट अपडेट्स होगा, डेटा में भी करप्ट डेटा दिखा सकते हैं। सो आइसोलेशन इज वेरी क्रिटिकल इन कॉन्करेंट सिस्टम। ओके, अगर कॉन्करेंट यूज हो रहा है तो वहाँ पे आइसोलेशन का बहुत रिक्वायरमेंट है, और कौन सा आइसोलेशन यूज हो रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना ही है। डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर ऑरिकल डेटा यूज कर रहे हैं, डेटाबेस यूज कर रहे हैं, और अगर ई कॉमर्स एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो हमें उसे चेंज करना ही पड़ेगा। बैंकिंग सिस्टम, ऑरिकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं और बैंकिंग सिस्टम है हमारा, तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा। रीड कमिटेड डिफॉल्ट है उसका, बट हमें उसे सीरियलाइजेबल चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आइसोलेशन क्या करता है, कंट्रोल करता है व्हाट वन ट्रांजेक्शन कैन सी फ्रॉम द अनदर ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या कंट्रोल करता है, एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को कैसे देख सकता है, उसको कंट्रोल करता है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या है आइसोलेशन, क्या है। एक तरह से ट्रांसपेरेंट वॉल कह सकते हैं बिटवीन ट्रांजेक्शन्स। लो आइसोलेशन और हाई आइसोलेशन जो भी आप कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वॉल है वो। दिस इज द सिंपल मॉडल आई एक्सप्लेन। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स। ओके, आपको समझ आया होगा। मैंने आपकी प्रॉब्लम्स भी बताई, क्या प्रॉब्लम्स थी, आइसोलेशन ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, आइसोलेशन क्या करता है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस थे जो इंटरव्यू को मैं पूछ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। और आई so today we deeply understood isolation level from the theory perspective
वी लर्न, क्या क्या लर्न किया हमने यहाँ पे, वाई आइसोलेशन एग्जिस्ट, व्हाट प्रॉब्लम इट सॉल्व्स, हाउ ईच आइसोलेशन लेवल बिहेव्स, व्हेन टू यूज विच लेवल. ओके, it is the very important thing, when to use which levels. Okay, so in the next video we will demonstrate these isolation levels using the real concurrent threads in Spring Boot. So basically you can visualize, see the differences, what differences is happen. Okay, so let's see you in the next video of Analyst Adda. ओके, बाय बाय. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा. जिसको जावा से रिलेटेड वीडियो देखना है, जिससे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है, तो वो मेरी वीडियो देख सकता है. ओके, थैंक यू, बाय बाय.